السلام علیکم. ہماتن گوش میں خوش آمدید. تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ. تقدیر کی فسوں گری، قسمت کی چال بازی یا مقدر کا کھیل. جرم، افسر شاہی اور جاگیرداری کے پس منظر میں لکھی گئی ایک دلچسپ داستان. گرداب. گرداب قسط نمبر 25. مہبانو باورچی خانے سے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ پیچھے سے اسے آواز سنائی دینے لگی. اس آواز پر وہ چونک کر پلٹی. اس کے پلٹتے ہی کاغذ کی ایک گولی اس کے شانے سے ٹکرائی اور فرش پر گر پڑی. اس نے نیچے جھک کر کاغذ کی اس گولی کو اٹھایا اور آواز کی سمت دیکھا. پچھلی جانب واقع مکان کی چھت پر ایک لمبے بالوں والا لڑکا ہاتھ میں کبوتر لیے کھڑا تھا اور اسے متوجہ ہوتے دیکھ کر اس نے لوفرانہ انداز میں اپنی بائیں آنکھ کو دبایا. وہ لڑکے کی اس حرکت پر چھینپ کر تیزی سے کمرے کی طرف بھاگ گئی. اندر عامر کی بیمار ماں چارپائی پر پڑی سو رہی تھی. اس نے اپنی مٹھی میں دبی کاغذ کی گولی کو کھول کر اس پر ناپختہ لکھائی میں تحریر کردہ مضمون پڑھا. وہ ایسے الفاظ پر مشتمل خط تھا جس کی پچھلی چھت پر موجود کبوتر باز سے ہی امید کی جا سکتی تھی. اس نے خط کا مضمون پڑھے بغیر کاغذ کے کئی پرزے کیے اور کمرے کی کھڑکی کھول کر ان پرزوں کو باہر گلی میں پھینک دیا، جہاں پر پہلے سے موجود ڈھیروں کوڑے کرکٹ میں کاغذ کے وہ چند پرزے فوراً ہی مدغم ہو گئے. وہ فوراً کھڑکی سے پیچھے پلٹ آئی اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے حالات کے بارے میں سوچنے لگی. سرمد دارالمان چلا گیا تھا، لیکن وہاں سے منتظمہ کے مرنے کی خبر لے کر مایوس لوٹا تھا. اس کے بعد تو یہی طے پایا تھا کہ سرمد یا عامر میں سے کوئی ایک جا کر براہ راست شہریار سے ملاقات کر کے اسے مہبانوں کے بارے میں کوئی اطلاع دے دے گا، لیکن فوری طور پر دونوں میں سے کوئی وہاں نہیں جا سکتا تھا. سرمد کو خدشہ تھا کہ پولیس والوں کی نظریں اس پر ہی لگی ہوں گی، جبکہ عامر جس آفس میں پی این کے فرائض انجام دیتا تھا وہاں سے اسے آسانی سے چھٹی ملنا مشکل کام تھا. اس تمام صورتحال میں وہ یہیں رہنے پر مجبور تھی. عامر کی والدہ کی خدمت کر کے اسے دلی سکون ملتا تھا، لیکن بیبے اور اماں کی یاد اسے بری طرح سے ستاتی تھی. اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح سے معاملات ایسا رخ اختیار کر لیں کہ وہ پہلے کی طرح زندگی بسر کر سکے، لیکن حالات نے جس طرح اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا تھا اسے ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی. مستقبل میں غلطاں پیچاں بیٹھے ابھی اسے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی. ایسے اوقات میں عموماً کوئی ہمسائی اماں کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا کرتی تھی. اس نے کمرے سے نکل کر بے دھڑک بیرونی دروازہ کھول دیا. اگلے ہی لمحے ایک لڑکی تیزی سے اندر آئی اور خود ہی دروازے کی کنڈی چڑھا دی. وہ کچھ گھبرائی ہوئی لگتی تھی. کیا ہوا بھائی، کون ہو تم اور اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اس نے لڑکی سے دریافت کیا. میں جمیلہ ہوں جی، اس پیچھے والے گھر میں رہتی ہوں. خالہ جی کی طبیعت پوچھنے آئی تھی. لڑکی نے اسی گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں سے اس کبوتر باز لڑکے نے کچھ دیر قبل رکا پھینکا تھا. اس نے اپنا تعارف کروایا اور اپنی اوڑھنی سے چہرے پر آیا پسینہ پونچھنے لگی. اس کے چہرے پر موجود گھبراہٹ ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی. مہبانوں نے بغور اس کا جائزہ لیا. وہ تقریباً اسی جیسے قد و قامت کی ہم عمر لڑکی نظر آتی تھی. اس میں نسوانی کشش برائے نام ہی تھی. چوڑے چوڑے ہاتھ کسی عورت کے بجائے مرد کے معلوم ہوتے تھے. بالائی ہونٹ سے اوپر اور تھوڑی اور رخسار کی جلد پر کھردرے پن کا احساس ہوتا تھا. یہ کھردرا پن چہرے پر جمائی گئی پاؤڈر کی تہ کے باوجود بہت زیادہ نمایاں تھا. لے جائیں گے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، رہ جائیں گے دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے. ابھی اس کا جائزہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ باہر سے تالیوں اور ڈھول کی تھاپ کے ساتھ بھونڈی سی آوازوں میں گانا گانے کی آوازیں آنے لگی. اس انداز میں گانا گانے والے کون لوگ تھے؟
وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن اسے حیرت تھی کہ وہ لوگ اس دروازے پر رک کر کیوں گاتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا گھر تو نہ تھا جہاں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے بدلے انہیں کسی روپے پیسے سے نوازا جاتا۔ اللہ کے نام پر دے دے، اللہ کے نام پر دے دے۔ گانے کی آواز کے درمیان ہی کسی نے دروازے پر دستک دے کر آواز لگائی، دروازہ مت کھولنا۔ جمیلہ نامی لڑکی نے اس کا ہاتھ تھام کر خوفزدہ انداز میں اسے روکا۔ تم اندر چل کر خالہ کے پاس بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اسے اندر بھیجا اور خود باورچی خانے میں چلی گئی۔ آٹے کے کنستر سے ایک پیالہ آٹا لے کر وہ واپس دروازے پر آئی تو ویسی ہی صداؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ البتہ جمیلہ اندر کمرے میں جا چکی تھی۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ زرق برق کپڑوں میں چہروں پر میک اپ کی موٹی موٹی تہ جمائے وہ 3 ہجڑے تھے جن کے ارد گرد محلے کے بچے جمع تھے۔ کچھ عورتیں بھی دروازے کی آڑ میں اور کھڑکیوں سے باہر جھانکتی تماشا دیکھتی تھی۔ یہ لے لو۔ اس نے آٹے سے بھرا پیالہ آگے بڑھایا تو دستک دینے والا ہجڑا بتک کر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ پیالہ بھر آٹا، میں اس کا کیا کروں گا؟ تو پھر کیا چاہیے؟ میرے پاس تو اس وقت دینے کے لیے بس یہی ہے۔ اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ خود اس کا سارا سامان تو دارالامان میں رہ گیا تھا۔ وہ کسی دوسرے کے گھر میں بیٹھ کر کیا دے سکتی تھی اور ان کی کیا مدد کر سکتی تھی؟ تیرے پاس تو بڑا قیمتی ہیرا ہے، پر جانے دے، آج نہیں دیتی تو کوئی بات نہیں، میں پھر آ کر لے جاؤں گا۔ ہجڑے نے جواب دیا اور پھر وہ تینوں گاتے بجاتے واپس پلٹ گئے۔ وہ ان کی بات کا مفہوم سمجھے بغیر الجھی واپس اندر پلٹ گئی۔ کمرے میں جمیلہ اور عامر کی اماں باتوں میں مصروف تھی۔ شاید شور کی آواز سے عامر کی والدہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اچھا ہوا خالہ جی آپ اٹھ گئی، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ انہیں جاگتے دیکھ کر اس نے کہا اور باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر ایک ٹرے میں کھانے کے برتن اور دیگر چیزیں رکھ کر کمرے میں چلی آئی۔ جمیلہ کو بھی ان لوگوں نے کھانے پر روک لیا تھا۔ یہ جمیلہ بہت اچھی لڑکی ہے، ہر تیسرے چوتھے دن چکر لگا کر میرے کئی کام کر کے جاتی تھی۔ کھانے کے دوران خالہ جی جمیلہ کی تعریفیں کرتی رہیں۔ کھانا کھا کر ان پر دوبارہ غنودگی طاری ہونے لگی۔ جب ان دونوں نے دیکھا کہ خالہ جی دوبارہ سونے کی تیاری میں مصروف ہیں تو وہ جمیلہ کو لے کر بیٹھک میں آ گئی۔ جمیلہ کے سوالات کے جوابات میں اس نے اپنے بارے میں وہی کچھ بتایا جو وہ پہلے سے طے کر چکے تھے۔ جمیلہ ہمدردی سے اس کی مظلومیت بھری داستان سنتی رہی۔ موقع دیکھ کر اس نے جمیلہ سے اس کبوتر باز لڑکے کی بھی شکایت کر دی جس پر اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ ابا سے شکایت کر کے اپنے بھائی کو سیدھا کروا دے گی۔ کھردری جلد اور مردانہ سی ساخت رکھنے والے ہاتھ پیروں کی مالکہ جمیلہ طبیعتاً بہت ہمدرد اور معصوم لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ ارے جمیلہ یہ تو بتاؤ کہ جب تم آئی تھی تو اتنی ڈری سہمی کیوں تھی؟ کیا باہر کوئی تمہیں تنگ کرتا تھا؟ اسے یاد آیا تو اس نے جمیلہ کی گھبراہٹ کے بارے میں سوال کر لیا۔ نہیں، میں گھبرائی ہوئی نہیں تھی، بالکل نہیں، بس پچھلی گلی سے یہاں تک تیز تیز چل کر آئی تھی نا، اس لیے سانس پھول گیا تھا۔ وہ صاف مکر گئی اور پھر فوراً ہی کھڑے ہوتے ہوئے بولی، اچھا اب میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، اماں انتظار کرتی ہوں گی، بہت دیر ہو گئی مجھے آئے۔ تم میرے بھائی کی طرف سے بالکل فکر مت کرنا، اس کے میں ابا سے اچھی طرح سے کان کھچواؤں گی۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ رکی نہیں اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ماہبانو حیران سی کھڑی اس کا یہ رد عمل دیکھتی رہی۔ نور پور کی حدود میں داخل ہوتے ہی انہیں خوشگوار سا احساس ہوا۔ چھوٹے سے اس گاؤں کے مکانات کو دیکھ کر بے شک مکینوں کی خستہ حالی کا احساس ہوتا تھا، لیکن اس احساس کے ساتھ ہی گلی کی ترتیب اور صفائی ستھرائی بھی فوراً نظر آتی تھی۔ ان ترتیب دار گلیوں سے گزر کر زمیندار کے پختہ مکان تک پہنچنے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ مکان کے دروازے پر ایک نوکر نے ان کا استقبال کیا اور پھر انہیں ایک بیٹھک میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر میں نوکر نے لسی اور دیگر لوازمات ان کے سامنے رکھ دیے۔ دونوں بغلوں کے نیچے بیساکھی دبائے زمیندار بھی وہیں پر آ گیا۔ بیساکھیوں کو دیکھ کر یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ دیگر زمینداروں کی طرح وہ خود شہریار سے ملنے اس کے دفتر کیوں نہیں پہنچ پایا تھا۔ بہت مہربانی جی، بہت مہربانی اسی صاحب کہ آپ ادھر تشریف لائے۔ میں تو بڑے دنوں سے آپ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ آپ کے دوسرے گاؤں میں جانے کی خبریں تو مجھے ملتی رہتی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ دیکھیں میرے گاؤں کا مقدر کب جاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آج آپ کو ادھر آنے کا خیال آ ہی گیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔
मेरी कोशिश तो यही थी कि अपने इलाके में मौजूद हर गांव का कम से कम एक दौरा तो कर ही लूं, लेकिन कोई न कोई ऐसी मसरूफियत आड़े आ जाती है कि मैं अपने उस इरादे पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं कर पाता। आपके गांव का दौरा भी शुरू से ही हमारी फहरिस्त में शामिल था, लेकिन आज बहुत मुश्किल से हम इस काम में कामयाब हुए। आपने गांव में बिजली की सप्लाई के सिलसिले में जो दरख्वास्त दी थी वो मैंने देख ली है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हो सके। आप बताएं कि इस मसले के अलावा और कौन कौन से मसाइल हैं जिनके हल में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। नूरपुर का जमींदार वो वाहिद शख्स था जिसने अपने किसी ज़ाती मसले के बजाय अपने इलाके की तरक्की के लिए दरख्वास्त दायर की थी, इसलिए शहरियार का रवैया उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था और वो बजाय गांव के लोगों के पास जाने के बराह रास्त उसी से गांव के मसाइल पूछता चला जा रहा था। यहाँ का सबसे बड़ा मसला तो गुर्बत ही है। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ कुम्हार हैं, कुछ जोलाहे हैं। आबादी के हिसाब से रोज़गार के ज़राए बहुत कम हैं। मैं चाहता था कि गांव में बिजली आ जाए तो किसी छोटी मोटी घरेलू सनत की बुनियाद डाल सकूं। लोगों को रोजगार मिलेगा तो गांव खुद ही तरक्की करने लगेगा। जमींदार ने जवाब दिया, आपके ख्यालात सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे मिलने वाले अफराद में आप वाहिद शख्स हैं जिन्हें अपने ज़ाती मफादात के बजाय अपने गांव की तरक्की अजीज़ है। उसने ज़मींदार को सराहा। ज़ाती मफादात में पड़ने की मेरे पास कोई गुंजाइश है ही नहीं। मेरी बीवी बरसों पहले एक हादसे में मर गई। मैंने अपनी टांगे उसी हादसे में गंवाई थी। औलाद हमारी कोई थी ही नहीं। अब मुझ जैसा अकेला और उधेड़ उम्र आदमी दौलत जमा करके क्या करेगा, और अगर कर भी लेगा तो किसके काम आएगी। बस एक छोटी बहन है, उसे इज्जत से उसके घर का कर दूं तो मेरी सारी फिक्रें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। मुझे जो कुछ सोचना है अपने गांव के बारे में ही सोचना है। ज़मींदार ने सादगी से अपने रवैये की वजाहत करते हुए नौकर को मज़ीद लस्सी लाने के लिए आवाज़ लगाई। मज़ीद तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं ज़मींदार साहब, बस आप मुझे ये बताएं कि आपके गांव में तालीम और सेहत की क्या सूरत हाल है। लोग अपने बच्चों को तालीम दिलवाने में कितनी दिलचस्पी रखते भी हैं या नहीं। शहरियार ने उसे टोकते हुए दोबारा से सवाल किया। सिर्फ दिलचस्पी से क्या होता है जनाब, उन बेचारों के पास तो 2 वक्त पेट भरकर रोटी खाने की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। हुकूमत ने कभी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। यही हाल सेहत का भी है। लोग बीमार होते हैं और जब बीमार होते हैं तो खुद ही कुछ टोटके करके इलाज कर लेते हैं। किसी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो उसे चारपाई पर डालकर नूरकोट लेकर चले जाते हैं। अब बंदे की किस्मत कि अगर जिंदगी हो तो वहां जाने तक बच जाएगा, वरना उसे वापस लाकर यहाँ दफना दिया जाता है। बस किस्सा ख़त्म। दीगर देहातों की तरह वहाँ भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस वाहिद हौसला अफजा बात यह थी कि गांव का सबसे ज़्यादा बाअसर शख्स उनका साथ देने के लिए तैयार खड़ा था। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके गांव के मसाइल के हल के लिए मैं तरजीही बुनियादों पर काम करने की कोशिश करूँगा। तालीम, सेहत और रोज़गार, इन तीनों इशूज़ पर मेरी गहरी नज़र है। ज़मींदार को यकीन दहानी करवाकर वो लोग वापसी के लिए उठ गए। घर के बड़े सहन से गुजरते हुए उन्होंने क्यारी में मौजूद फूलदार पौधों पर एक लड़की को झुके हुए देखा। वो यकीनन ज़मींदार की छोटी बहन थी, जो उन लोगों को देखकर फौरन भागकर एक कमरे में छुप गई। ज़मींदार के घर से निकलने के बाद उन्होंने गांव का चक्कर लगाकर हालात का एक तायराना सा जायज़ा लिया और फिर वापसी के लिए रवाना हुए। आज शहरियार की मोतीवाला के वकील से भी मुलाकात तय थी। घर पहुंचकर उसे बस इतनी सी मोहलत मिल सकी कि वो गुस्ल करके अपने वजूद पर से दिन भर की गर्दो गुबार को उतार सके। गुस्ल के बाद वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों को संवार रहा था कि बटलर ने उसे अब्दुल मनान की मोतीवाला के वकील के साथ आमद की इत्तला दे दी। ओके, तुम उन्हें बिठाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बटलर को जवाब देकर वो तैयार होने लगा। 7-8 मिनट में उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई। तैयारी मुकम्मल होने के बाद वो सीढ़ियाँ उतरकर निचली मंजिल पर मौजूद ड्राइंग रूम में जा पहुँचा, जहाँ पर तरबियत याफ्ता मुलाजमीन लवाजमात के साथ साथ चाय सर्व कर चुके थे। हफीज शिराजी, मिस्टर मोतीवाला के कानूनी मुशीर। उसके ड्राइंग रूम में पहुंचने पर अब्दुल मनान ने
तारुफ की रस्म निभाई। उसने हफीज शिराजी से हाथ मिलाकर उसे बैठने का इशारा किया और खुद भी एक सोफे पर टिक गया। लाहौर से यहाँ तक पहुँचने में आपको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ी? हफीज शिराजी की आमद का असल मकसद पूछने से पहले उसने एक रस्मी सा सवाल किया। तकलीफ कैसी? मैं तो अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करने आया था। अगर आप मोतीवाला की तदफीन के बाद लाहौर में 1-2 रोज़ क़याम करते तो मैं आपसे वहीं पर मुलाकात कर लेता, लेकिन अब भी कोई मसला नहीं। मुझे तो बहरहाल अपना फ़र्ज़ पूरा करना था, इसलिए यहाँ तक चला आया। शहरियार के सवाल का जवाब देकर वो अपना ब्रीफकेस खोलने लगा। ब्रीफकेस में से उसने एक खाकी लिफाफा निकालकर शहरियार की तरफ बढ़ाया और बोला, अपने बेटे की वफ़ात के कुछ दिन बाद ही मोतीवाला साहब ने अपनी नई विल यानी वसीयतनामा तैयार करवा दिया था। उस वक्त उन्होंने मुझसे आपका जिक्र भी किया था। वो बड़े जहांदीदा किस्म के आदमी थे। राना साहब के बारे में भी शायद आप पहले से जानते हैं। फिर यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद भी उन्होंने आपको गौर से देखा। आपके बारे में उनकी राय थी कि आप एक उलुल अज़्म और ईमानदार आदमी हैं, जो कम से कम अपने कैरियर के इब्तिदाई हिस्से में तो हरगिज भी किसी करप्शन में मुलविस नहीं हो सकते। शहरियार ने खामोशी से हफीज शिराजी के अल्फाज सुने और खाकी लिफाफा खोलकर उसमें मौजूद कागजात निकालकर उनका जायजा लेना शुरू कर दिया। इन तमाम कागजात के मुंदरजात हफीज शिराजी के अल्फाज की तस्दीक कर रहे थे। मोतीवाला ने अपने उस वसीयतनामे में अपनी जायदाद का ट्रस्टी करार देते हुए अपने बेटे के नाम से फलाही अस्पताल के कयाम की ख्वाहिश के साथ ये तजवीज़ भी पेश की थी कि शहरियार ये अस्पताल अपने इलाके में तामीर करवाएगा। शायद वो अपने उस जुर्म का कफ़ारा अदा करना चाहता था जो उसने चौधरी इफ्तिखार के साथ मिलकर जंगल से लकड़ी की स्मगलिंग की शक्ल में किया था। जंगल के दरख्तों से हासिल होने वाली ये दौलत, जिस पर यकीनन उस इलाके के लोगों का हक था, उसी सूरत में वापस लौटाई जा सकती थी। मोतीवाला ने एक अक्लमंदी ये भी की थी कि शहरियार को मुख्तार कुल नहीं बनाया था, बल्कि हफीज शिराजी समेत वकला का एक सैरुकनी बोर्ड मुकर्रर किया गया था जो उसकी कारकर्दगी का जायजा लेता जाएगा और किसी भी तरह की करप्शन की सूरत में उसकी रोकथाम का बंदोबस्त भी मुनासिब तरीके से कर दिया जाएगा। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मोतीवाला साहब ने मुझे इस लायक समझा। उनकी इस विल ने मेरे हाथ बहुत ज़्यादा मजबूत कर डाले। अपने इलाके की तरक्की के लिए मेरे जहन में बहुत से मंसूबे पहले ही थे, लेकिन जाहिर है मैं फौरी तौर पर हुकूमत से उन तमाम मंसूबों के लिए मराहत हासिल नहीं कर सकता था। मोतीवाला साहब की इस विल के बाद मैं कम अज़ कम इस लायक तो हो जाऊंगा कि हेल्थ के मसाइल हल कर सकूंगा, मगर इस सिलसिले में मेरे जहन में भी पहले से मंसूबा है। जो मंसूबा मौजूद है वो मोतीवाला की ख्वाहिश से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं एक बड़े अस्पताल के क़याम के बजाय सेहत के छोटे छोटे मराकज़ मगर जदीद मराकज़ के क़याम में दिलचस्पी रखता हूँ। अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा अस्पताल बनाएंगे तो वो यकीनन किसी एक कस्बे या इलाके में कायम किया जाएगा और लोगों के लिए उस अस्पताल तक बरवक्त पहुँचने का मसला अपनी जगह ही रहेगा। इसके बरखिलाफ अगर हम मुख्तलिफ देहातों में छोटे छोटे यूनिट्स कायम कर दें तो लोगों को ज़्यादा आसानी रहेगी। एक ऑपरेशन थिएटर, अद्वियात और छोटी मोटी मशीनों के साथ एक लेडी डॉक्टर, जनरल फिजिशियन और पैरामेडिकल स्टाफ पर मुश्तमिल उन तमाम यूनिट्स से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया तो इन तमाम यूनिट्स में मरीज़ों को फ़र्स्ट एड पहुंचा दी जाएगी और फर्स्ट एड देकर किसी बड़े शहर तक पहुंचाने की मोहलत भी मिल सकेगी। अभी तो ये हाल है कि कहीं कहीं ही हुकूमत की कायम करदा डिस्पेंसरियाँ नज़र आती हैं और वहाँ भी डॉक्टर्स नदारद। लिफाफे में कागजात वापस रखने के बाद उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आता था। वो मुख्तलिफ मंसूबे जो मुसलसल उसके जहन में पलते रहते थे, उनमें से एक की तकमील की राह जो निकल आई थी। आज शहरियार बहुत खुश था। तजवीज़ तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे इस तजवीज़ पर कोई एतराज़ नहीं। मैं बोर्ड के बाकी 2 मेंबरान से भी इस तजवीज़ को डिस्कस करके आपको हतमी जवाब दे दूंगा। मेरे ख्याल में तो वो लोग भी इस तजवीज़ को रद्द नहीं करेंगे। हफीज शिराजी का जवाब बड़ा हौसला अफजा था। उसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण सी चमकती नजर आने लगी, वरना महबानों के गायब होने के बाद
जो अंधेरा उसके अंदर छा गया था उससे उसे अपने अंदर बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी। बैरूनी दरवाजे पर दी जाने वाली जोरदार दस्तक पर उसकी आंख खुल गई। मौजूदा हालात में उसे गहरी नींद कभी ना आती थी और वो जरा सी आहट पर ही चौंक कर उठ जाया करती थी। दरवाजे पर दी जाने वाली ये दस्तक तो बहुत जोरदार थी और मुसलसल यूं दी जा रही थी जैसे दरवाजा ना खुलने की सूरत में दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। खौफ और अंदेशों से घिरा उसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। उसने साथ सोई हुई खाला जी को एक नजर गौर से देखा। दस्तक की इस आवाज पर डिस्टर्ब होकर वो भी कसमसा रही थी, लेकिन दवाओं के जेरे असर उनका जहन फौरी तौर पर बेदार होने से कासिर था। वो बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस दौरान आमिर भी जाग चुका था और बैठक से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। आ रहा हूँ भाई। कौन है? जरा सब्र से काम लो। उसके बालाई जिस्म पर कपड़े मौजूद न थे। शायद वो उन लोगों में से था जो हर मौसम में एक जैसे होलिये में सोना पसंद करते थे। क्या भंग पी कर सो गया था जो इतनी देर तक कुछ सुन न सका? इतनी देर से आंख खुली और अब भी दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। बाहर से किसी की बुलंद और गुसीली आवाज उसे सुनाई दी। अच्छा, ये तू है? ले, खोल दिया मैंने दरवाजा, अब आ जा अंदर। बाहर से बोलने वाला यकीनन उसके लिए शनासा था। उसने इत्मीनान से बोलते हुए झट दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही 4-5 लड़के दनाते हुए अंदर घुस आए। क्या बात है यार, तुम लोग इस वक्त क्यों आए हो? वो सब उसके लिए आशना थे, लेकिन उनका अंदाज और चेहरे का तासुर कतई अजनबी था। देखो तो जरा कैसा मासूम बनता है। हालांकि इसका हुलिया देखकर सब समझ सकते हैं कि ये कौन से गुलछरे उड़ा रहा था। कटीले लहजे में ये जुमला बोलने वाले को महबानों ने अच्छे तरीके से शनाख्त कर लिया था। वो पिछले घर में रहने वाला जमीला का भाई था जिसने उसे रुक्का फेंका था। कौन से गुलछरों की बात करते हो तुम? मैं सारा दिन थका हारा मजदूरी करता हूँ और फिर यहाँ आकर थक हार कर गहरी नींद सो रहा था। तुम लोगों की आवाज से मुझे जागना पड़ा और अब तुम उल्टी सीधी बातें यहाँ पर खड़े करते हो। जाओ यहाँ से, निकलो। मैं कोई तुम लोगों की तरह बाप की कमाई पर पलता नहीं हूँ कि रातों को जागकर तुम्हारे साथ मगजमारी करता फिरूं। सवेरे मुझे दोबारा ड्यूटी पर भी जाना है। आमिर के तेवर बिगड़ रहे थे। देखते हो यारो कैसे बिगड़ता है ये। हाँ भाई, आदमी के ऐश में खलल पड़े तो उसे बुरा तो महसूस होगा ना। कबूतरबाज ने एक और तंज का तीर चलाया। आमिर की तरह कमरे के दरवाजे की आड़ में खड़ी महबानो भी हैरान परेशान खड़ी थी। वो सोचती थी कि ये लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। उसके अंदाज से तो साफ लगता था कि वो झगड़े के मूड में निकला था। जबान संभाल कर बात कर परवेज, तो जैसा आए रोज लड़कियों को छेड़कर उनके बाप भाइयों से पिटने वाला सिर्फ और सिर्फ मुझ पर इल्जाम तराशी करता है। इल्जाम के अलावा कुछ नहीं है। आमिर ने तेज लहजे में जवाब दिया। मैं तो सिर्फ लड़कियों को छेड़ता ही हूँ ना, पर तूने तो दीदा दलेरी की हद कर डाली। जवान जहान लौंडिया घर में पड़ी है, अब मजे से अय्याशी करता फिरता है ना। तेरी तो मैं। परवेज के इस इल्जाम पर वो खुद पर काबू न रख सका और झपट कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। परवेज के साथ आने वाले लड़के फौरन उसकी मदद को लपके। आमिर जानदार लड़का था। उसने परवेज के हिमायतियों में से एक के पहलू में कोहनी मारी और दूसरे की तरफ देखे बगैर यूं ही अपनी टांग पीछे की तरफ को चला दी। इस सारी कार्रवाई के दौरान परवेज का गिरेबान उसके हाथ में ही रहा था। मौका पाते ही उसने गिरेबान को झटका देकर परवेज को पिछली तरफ धकेल दिया। उसका सर पीछे मौजूद दीवार के साथ जाकर लगा और हलक से जोरदार चीख निकली। इस दौरान आमिर खुद भी जद में आ गया। एक लड़के ने उसे पीछे से झपट लिया था और दूसरा उसके पेट पर मुक्के बरसाता था। मुक्कों की ये ज़र्ब यकीनन बेहद तकलीफ दे थी। आमिर कराहता हुआ दोहरा हो गया और यूं लगा कि नीचे फर्श पर बैठ जाएगा, लेकिन अगले ही लम्हे उसने अपने सामने खड़े होकर मुक्के बरसाने वालों को दोनों हाथों में जकड़कर दाएं जानिब से हमलावर होते हुए लड़के पर जोर से दे मारा। पीछे से उसे जकड़ने वाला उसे दोहरा होता देखकर गैर इरादी तौर पर उसे छोड़ चुका था, इसलिए अब वो किसी की गिरफ्त में नहीं आ सकता था। उसने लपक कर दीवार के साथ टिकी चरपाई की बल्ली उठाई और उन चारों की मुरम्मत शुरू कर दी। इस सारी कार्रवाई में अच्छा खासा शोर पैदा हुआ और करीब करीब वाके घरों में लोग जाग गए थे। ये क्या हो रहा है? खाला जी भी इस दौरान जाग गई थी और साकित और सामित महबानों के पीछे आकर खड़ी उससे पूछती थी।
मालूम नहीं खाला, जाने ये कौन लड़के हैं जो अचानक ही अंदर घुस आए और आमिर भाई से लड़ाई शुरू कर दी। उसने खाला जी की बात का जवाब जरूर दिया, लेकिन उसकी नजरें अपने सामने होते मार्के से बिल्कुल ना हटी। आमिर के हाथ में बल्ली आ जाने के बाद पस्त होते हुए लड़कों ने एक बार फिर संभाला ले लिया। उनमें से 2 ने मिलकर बल्ली को पकड़ लिया और 2 पीछे से उसे जकड़ने की कोशिश में मसरूफ थे। ये क्या हो रहा है? तुम क्यों लड़ते हो? मैं कहती हूँ रुक जाओ। महबानों की तरह वहीं रुक कर लड़ाई देखने के बजाय खाला जी तेजी से बाहर निकली और सबको पुकारा, लेकिन लड़ाई के जोश में उनकी कमजोर सी आवाज कहीं दब गई। उसी वक्त आसपास के घरों के जाग जाने वाले लोग खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। रोको इन लोगों को, वरना ये लड़ कर एक दूसरे की जान ले लेंगे। पड़ोसियों को सामने पाकर खाला का हौसला कुछ बुलंद हुआ और उन्होंने उन सब लोगों को मदद के लिए पुकारा। 5-6 अफराद मिलकर लड़ते हुए लड़कों को काबू करने की कोशिश करने लगे। आखिर वो लोग कुछ देर की कोशिश के बाद लड़ाई रुकवाने में कामयाब हो ही गए, लेकिन इस दौरान आमिर समेत तमाम लड़कों का हुलिया अच्छा खासा बिगड़ चुका था। आमिर की बल्ली की जद में आकर 2 लड़कों के सर फट चुके थे। एक की नाक से खून बहता था और एक अपने बाजुओं पर लगने वाली चोटों को सहलाता था। खुद आमिर का हुलिया भी अबतर था। उसका निचला होंठ फट चुका था और दाएं आंख के नीचे भी जख्म आ गया था। जिस्म के बालाई उरिया हिस्से भी कई चोटें खा चुके थे। बेशक वो बहुत बेजिगरी से लड़ा था, लेकिन तन्हा होने की वजह से उसने भी मार ज्यादा ही खाई थी। मोहल्ले वालों ने तमाम लड़कों के जख्म धुलवाए और फिर उन्हें बैठक में बिठाकर तमाम लड़ाई झगड़े का सबब मालूम करने की कोशिश करने लगे। सारी गलती आमिर की है, हम तो सिर्फ उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए उसके घर आए थे। उसने बिलावजह हम पर हाथापाई शुरू कर दी। परवेज के साथ आने वाले लड़के ने इल्जाम लगाया, उल्लू के पट्टे, एक तो तुम लोगों ने मुझ पर बेकार की इल्जाम तराशी की, उस पर से गलती भी मेरी ही बताते हो। आमिर उसकी बात सुनकर भड़का। वो यूं भी मोहल्लेदारों की वजह से झगड़े से तायब हो गया था, वरना उसके अंदर अब भी गुस्सा भड़कता था। धीरज पुत्र, धीरज, आराम से बात करो, हम तुम सब की बात आराम से सुनेंगे। एक उम्र रसीदा पड़ोसी आमिर के शाने थपथपाते हुए उसे ठंडा रहने पर मजबूर कर रहा था। आप देखते हैं चाचा जी, ये आप लोगों के सामने भी किस तरह भड़क रहा है। हम लोगों ने इसे इसी तरह से समझाने की कोशिश की तो भी इसने हमसे भड़क कर उलझना शुरू कर दिया, वरना हमने इससे सिर्फ इतना ही कहा था कि ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ सब माँ बहन वाले रहते हैं। तुम इस मोहल्ले में रहते हो तो शरीफों की तरह ही रहोगे और अपनी माँ की बीमारी का नाजायज फायदा बिल्कुल नहीं उठाओगे। क्या मतलब? क्या किया है आमिर ने? जरा बताओ तो सही। एक लड़के के दिए गए बयान पर सुलह सफाई करवाने वाले शख्स ने भी उलझकर सवाल किया। क्या कहूँ चाचा जी, बात ऐसी है कि कुछ कहते हुए जबान रुकती है, पर मैं अपनी आंखों का देखा भी नहीं भुला सकता। पर आप तो अक्लमंद आदमी है ना, इसका हाल देखकर बहुत कुछ समझ सकते हैं। मैंने इसे और इसकी मेहमान लड़की को बाहर आंगन में बड़ी बेशर्मी वाली हरकतें करते देख लिया। परवेज ने आमिर के बालाई ओरिया जिस्म की तरफ इशारा करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिस पर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। झूठ बोलता है ये नामुराद, झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ। मेरा बच्चा बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसकी तो बचपन की आदत है कि सर्दी गर्मी के मौसम में इसी तरह कमीज उतार कर सोता है। ये बच्ची बहुत शरीफ है, रोजाना मेरे साथ मेरे कमरे में सोती है। खाला जी जहाँ दीदा औरत थी, वो समझ गई कि परवेज बात को किस रुख पर ले जाता है, इसलिए तड़प कर बेटे की सफाई का इरादा कर लिया।